Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine in your home, doing the given work and using the quality time in a study. Myself, Varsa Joshi from Great Vision Public School, Ramnagar. I am your psychology teacher. As in a last video, हमने discuss करा था the types of stress. Are you remember about this one topic? Yes. You have any problem? Some students ask about the queries also. कुछ students ने मुझे queries अपनी send करी थी and they satisfied also. Or if any other have a problem related to that one type of a stress, psychological stress पे हमने बात करी थी. So you can send me your queries in my WhatsApp number also. All of you are having my WhatsApp number. So welcome you all in another video class of psychology. Let's continue the topic types of stress. Types of stress में firstly we discuss about the physical and environmental stress. After that I told you about the psychological stress. The major part of a stress, that is a psychological stress. And what are the major sources of a psychological stress? That are the frustration, conflict, internal pressure and a social pressure. All of you know about the difference between these things, na? What are the difference between the frustration and a conflict? Now you all are a psychology students and I hope so you all know about the difference about these things. Okay, what is a stress, what is a frustration, what is a conflict? आप सबको ये पता होना चाहिए because now you are studying in a subject psychology. So whatever the topic I teach you, just take your own example. You just try to understand the topic to take your own example. As I am also doing the same thing कि आपको जब भी किसी टॉपिक को समझाया जा रहा है आप उसका खुद की लाइफ से लेके एग्जाम्पल्स लेंगे तो यू बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक्स इन अ प्रॉपर मैनर. Fine. Most of the topics are related with your life also. So here the third type of stress, that is a social stress. As the name itself suggests, social stress given by the society. These are the, we can say, the included the externally and a result from the interaction with the other people. ये क्या है? एक हमारा external type of stress है जो हमें किससे मिलता है? जब हम दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्शन करते हैं. सोशल इवेंट्स लाइक द डेथ और वी कैन से द इलनेस एंड अ फैमिली मेम्बर, strained relationship, trouble in a neighbor, or we can say some example. These all are some example of a social stress. चाहे किसी की इंजरी की बात हो, किसी की फैमिली में कोई बीमार हो, कोई इलनेस की बात हो, डेथ की बात हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, नेबर्स के साथ प्रॉब्लम्स हो, ये सारे जितने भी कॉजेज़ हैं ये क्या हैं? सोशल स्ट्रेस के कॉज हैं आपके. फाइन. दिस सोशल स्ट्रेसेस वेरी वाइडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एज यू नो कि ईच एंड एवरी स्ट्रेस इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आप उसको कैसे हैंडल करते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. आपकी पर्सनालिटी जैसी होगी आप वैसे ही इस सोशल स्ट्रेस के साथ डील कर पाएंगे. अटेंडिंग पार्टीज में बी स्ट्रेसफुल फॉर अ पर्सन हु लाइक बी स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग एट अ होम while an outgoing person may find the staying at home in the evening stressful. कैसा भी हो सकता है. बहुत सारे लोगों को शाम को बाहर ज़्यादा पसंद है, बहुत सारे लोगों को घर के अंदर रहना पसंद है. इन बोथ दीज थिंग्स अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारा डेफिनेटली इंटरेक्शन होगा. इंटरेक्शन होकर धीरे धीरे कहीं ना कहीं इश्यूज क्लैश होते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस होता है. फाइन. तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये क्या थी? सोशल स्ट्रेस का कॉज थे. ये सोशल स्ट्रेस के टाइप्स थे कि कैसे सोसाइटी हमें स्ट्रेस देती है. नेबर्स के साथ फाइटिंग हो जाती है, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही हमारे नेबर्स के साथ, रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है. फाइन. ये सारी क्या है? हमारी सोसाइटी हमें स्ट्रेस दे रही है. सो दिस इज नोन एज अ सोशल स्ट्रेस. नाउ द टॉपिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इज फिनिश. You write down the things in a proper manner. What is the social stress and basic thing, the examples of a social stress. Now next topic in your book that is mentioned in a page number 56, that is the sources of stress. अभी तक तो हमने बात करी स्ट्रेस क्या था, उसका नेचर क्या था, उसके साइन एंड सिम्टम
क्या थे। और थर्ड थिंग हमने देखा था दैट वन कि कौन कौन से सोर्स, कौन कौन से टाइप्स थे स्ट्रेस के। अब हम देखेंगे सोर्स, कहाँ से ये सारे स्ट्रेस हमें मिलते हैं। अब वाइड रेंज ऑफ इवेंट इन अ ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऐसी बहुत बड़ी रेंज है हमारी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जहाँ पर से हमें स्ट्रेस मिलता है। हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, कॉज को नहीं कह सकते हैं दिस वन इज़ अ कॉज ऑफ अ स्ट्रेस फॉर द ह्यूमन बीइंग। नो, as you know, a human being, we are a human being, we have a wide range of personality. So definitely if we have a wide range of a personality, so definitely this one type of source of stress is also be a wide. The first thing is a life events. बेसिक हम यहाँ पे 3 टाइप्स पे बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग लाइफ इवेंट्स है हमारे, द सेकेंड थिंग इज द हैजल्स, एंड द थर्ड वन इज द ट्रॉमेटिक इवेंट्स। बेसिक 3 सोर्सेज ऑफ अ स्ट्रेस इन आर मेंशन इन आर बुक। हमारे लाइफ इवेंट हो गए चेंजेस बोथ बिग और अ स्मॉल, सडन और अ ग्रेजुअल, अफेक्ट आवर लाइफ एंड जस्ट put ourselves in a stress. We learn to cope with the small challenges in everyday life, but major life event can't be stressful because they disturb our routine, our causes, and many more things. If the life events that are planned, like moving into a new house, or we can say unpredictable, breakup from a long relationship, occurs with a short period of a time, we find it difficult to cope with them and will be more prone to symptom of stress. देखो बेटा, यहाँ पे सिंपली ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू योर बुक कि हमारी लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से प्लान नहीं होते हैं। अगर कोई चीज़ें पहले से प्लान होती है हमारी लाइफ में, तो हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ करता है। अचानक से आपको अपने घर से शिफ्ट करना है, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, वहाँ पे क्या है, नया एनवायरनमेंट मिलेगा। नए एनवायरनमेंट के साथ डील करने में थोड़ा हमें टाइम लग जाता है, और कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं हमारे लिए थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो जाती हैं। सेम इफ़ यू डोंट नो अबाउट द रिलेशन, और अगर हमें पहले से रिलेशन के बारे में नहीं पता है या सडनली कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं इन बिटवीन द रिलेशनशिप, तो दिस वन इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ अ लाइफ इवेंट्स। ये हमारे लाइफ के इवेंट्स हैं एंड दैट आर सोर्सेज ऑफ अ स्ट्रेस ऑल्सो। अब सेकेंड आ गई हैसल्स। हैसल्स मीन्स वो चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं, जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, दैट इज़ नोन एज द हैसल्स, एंड द हैसल्स इज कम इन अ सोर्सेज ऑफ अ स्ट्रेस। हमारी डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं। नॉइजी सराउंडिंग, और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, वाटर प्रॉब्लम, अ वेरी फाइटिंग टॉप ऑफ अ नेबर। ये सारी चीज़ें क्या हमें परेशान करी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है हमारे चारों, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है घर में, वाटर की ट्रबल हो रही है, नेबर्स के साथ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है। ये जितने भी हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं ये हमें परेशान करें। हैज़र्स, दीज ऑल इमरजेंसीज आर डेली हैज़र्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्सन दोज आर स्टेइंग इन अ होम। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो भी लोग होम में रहते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हों, चाहे वो स्मॉल चिल्ड्रंस हों, ठीक है, ये उन सबको फेस करनी पड़ती है। देयर आर सम जॉब्स इन विच डेली हैज़ल्स आर वेरी फ्रिक्वेंट। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें ये हैज़ल्स जो चीज़ें हैं ये बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। दिस डेली हैज़ल्स में सम टाइम हैव अ may be a cause for the individual who is often when coping along with them। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके डेली रूटीन ही ऐसा होगा कि उनके सामने ये हैज़ल्स आते हैं और उन्हें उस चीज़ों से कोप अप करना भी आता है क्योंकि वो डेली उन चीज़ों को डील करते हैं। The more stress people report as a result of a daily hazards, the we can say the poorer of the psychological well-being। और कहीं ना कहीं if we are not having the capability to deal these types of hazards, so definitely we will become the stressful person। और कहीं ना कहीं अगर हम डील नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो ये चीज़ें स्ट्रेस का एक सोर्स बन जाती हैं। थर्ड थिंग, ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ट्रॉमेटिक इवेंट्स मीन्स जो चीज़ें अचानक से आ जाती हैं, वी डोंट नो अबाउट द थिंग्स,
These included being involved a variety of the extreme events such as a fire हो गई, ट्रेन और रोड एक्सीडेंट हो गए, रॉबरी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया। अचानक से कहीं आग लग जाती है, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, किसी ट्रेन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, रॉबरी हो जाती है, अर्थक्वेक। वी डोंट नो अबाउट दीज ऑल थिंग्स आर नॉट प्री प्लान फॉर अस, वी डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न होती हैं, ठीक है। Some the trauma can also be a strained relationship. Professional will help be needed to cope up, especially if the many months after the event. The PTSD will come also. Post traumatic stress disorder भी हो जाता है traumatic events की वजह से। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया कहीं पे, पूरी जो भी वो जगह थी वहाँ के जितने भी पर्सन्स थे उनको बहुत हार्म हुआ, बिलोंगिंग्स का हार्म हुआ, मनी वाइज हुआ, और उनका जितना भी फ्यूचर था वो डैमेज हो गया। तो प्रेजेंट के अलावा इन फ्यूचर के एस्पेक्ट में भी वो क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस बन के क्या हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का एक कॉज होते हैं ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स। फाइन, सो द काउंसलर मस्ट बी नीडेड फॉर दीज टाइप्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो हेयर हमने क्या चीज़ें पढ़ी, हमने 3 सोर्सेज पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है द फर्स्ट वन सोर्स इज़ अ लाइफ इवेंट। लाइफ के हमारे इवेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें कभी नई जगह जाना पड़ सकता है, कभी रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होता है एंड वी आर अनएबल टू हैंडल द थिंग्स, तो डेफिनेटली दिस वन इज़ अ सोर्स ऑफ अ स्ट्रेस। द सेकेंड वन थिंग इज़ अ हैज़र्स, परेशान करने वाली डेली में जो चीज़ें हमारे सामने आती है, हैज़र्स दैट आर अ सोर्सेज ऑफ अ स्ट्रेस। एंड द थर्ड वन इज़ अ ट्रॉमेटिक इवेंट्स, अचानक से without pre-plan the things will come in front of us, or we are in a situation of a stress. So write down the things. I will ask the question, what is the difference between the traumatic events and a hazards? How you identify the hazards? Is the hazards is prolonged or come in a interval? Hazards तो डेली रूटीन में आने वाली चीज़ें हैं ना, इंटरवल में थोड़ी नहीं आता है। Fine, so these things are clear in mind. Make a notes, give the comment. I hope so all of you are trying to understand the topic in a proper manner. Thank you, have a nice day.